انہیں ایبکا کی زندگی چند گھنٹوں کے لیے چاہیے تھی تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو بھی نابود کرے جو ایبکا کے مرنے کے بعد کسی اور کے ہاتھ لگ جانے کی صورت میں ان کے لیے کوئی اور ایبکا کھڑا کر دیتا۔ ایبکا سے پہلے چند لوگوں نے رابطہ کر کے اسے اس سارے معاملے سے ہٹ جانے کے لیے رشوت کے طور پر بلینک چیک پیش کیا تھا، لیکن ایبکا کا انکار اقرار میں نہیں بدلا تھا۔ قیمت ہمیشہ اقرار کی ہوتی ہے، انکار انمول ہوتا ہے۔ ان پیشکشوں کے انکار کے بعد ایبکا کو پہلی بار یہ خدشات لاحق ہونے لگے تھے کہ اگر اسے خریدا نہیں جا سکتا تو اسے مارا جا سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایبکا نے اپنے بہت سے دوستوں اور ساتھیوں کے پاس ان دستاویزات کی کاپیاں رکھ دی تھیں۔ سی آئی اے کو اس کی خبر بھی تھی۔ ایبکا نے اگر سینکڑوں کاپیاں اور امریکہ، کونگو اور انگلینڈ میں اپنے دوستوں کے پاس رکھوائی تھی تو سی آئی اے کو ان سینکڑوں لوگوں کی معلومات تھی۔ وہ دستاویزات ہر جگہ سے چوری کر کے ان کی جگہ کچھ اور ڈاکومنٹس رکھ دیے جاتے تھے اور ایبکا کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے اس پروجیکٹ کے حوالے سے سارے سراغ مٹائے جا رہے تھے۔ فی الحال دنیا میں صرف 2 شخص تھے جن کے پاس وہ دستاویزات اپنی اصل شکل میں موجود تھے، پیٹریاس ایبکا اور سالار سکندر۔ ایبکا اب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور سالار اگلے دن خوار ہونے والا تھا، مگر سی آئی اے کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ ایبکا کے دستخط کیسے حاصل کر سکتے ہیں جس کی انہیں پوری ضرورت تھی تاکہ وہ اس کے لاکرز کھلوا سکتے جہاں اس کی اصل دستاویزات تھیں۔ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ان اصلی دستاویزات کو حاصل کرنے کے بعد ایبکا کو ختم کر دیں، مگر سب کچھ الٹ ہوا۔ پلان اے اور پلان بی ناکام ہو چکا تھا۔ سی آئی اے کو پلان سی سے کام لینا تھا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایبکا کے پاس ایک پلان ڈی تھا جس کا انہیں کبھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ کونگو میں اپنے گرل فرینڈ کے پاس ایک وصیت چھوڑ آیا تھا۔ اماما کو اندازہ نہیں تھا وہ کتنی دیر تک بے ہوشی کی حالت میں رہی یا رکھی گئی تھی، مگر بے ہوشی جب ختم ہونا شروع ہوئی تو اس نے جسے بے اختیاری کے عالم میں سب سے پہلے اس وجود کو ڈھونڈنا شروع کیا جسے اس نے پہلی بار اور آخری بار آپریشن تھیٹر میں بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ تکلیف کی حالت میں بھی اسے یاد تھا کہ کسی نے اسے بتایا تھا کہ وہ لڑکا تھا۔ درد سے بحال اس نے محمد حمین سکندر کو اپنے آغوش میں لیتے ہوئے اسے چوما تھا اور پھر اسے چومتی چلی گئی۔ وہ بے حد کمزور تھا اور وجہ اس کی قبل از وقت پیدائش تھی۔ وہ 3 ہفتے قبل دنیا میں آیا تھا۔ نیم غنودگی میں وہ اپنا بستر ٹٹولتی رہی، اس بات کا احساس کیے بغیر کہ وہ نوزائیدہ بچہ اس کے بستر پر نہیں سو سکتا تھا۔ بے ہوشی ختم ہو رہی تھی، اس کی یادداشت آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی، دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ جبریل، عنایا، سالار، وہ کچھ بے چین ہوئی تھی۔ اماما نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہاں کیسے آئی، ذہن پر زور دے کر۔ سی آئی اے کے لیے سب سے بڑی پریشانی سالار کی فیملی تھی، انہیں غائب کرنا ہی ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، مگر انہیں یہ احساس دلائے بغیر غائب کرنا کہ انہیں غائب کیا جا رہا ہے بہت مشکل تھا۔ سالار جس رات واشنگٹن کے لیے روانہ ہوا تھا اس کے اگلے دن اماما کے گائنیکولوجسٹ نے اسے فون کیا تھا۔ اماما کی معائنہ تاریخ 3 دن بعد کی تھی۔ اس کے امریکن ڈاکٹر نے اسے اسی دن ایمرجنسی میں آنے کے لیے کہا تھا۔ اماما نے کسی غور و خوض کے بغیر جانے کی حامی بھر لی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جبریل اور عنایا کے ساتھ پیڈی کو بھی ہسپتال لے کر گئی تھی۔ اس کے ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہا تھا کہ اسے بچے کی حرکت اب نارمل محسوس ہو رہی ہے، اس کو کچھ اور ٹیسٹ کروانے ہوں گے اور ساتھ انہیں کچھ انجیکشن لینا ہوں گے۔ اماما کو تشویش ہوئی تھی تو صرف یہ کہ سالار وہاں نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے ہمیشہ اس کے ساتھ وہاں آتی تھی ایسے معائنوں کے لیے۔ ڈاکٹر نے انہیں فوری طور پر ہاسپٹل میں کچھ گھنٹوں کے لیے یہ کہہ کر ایڈمٹ کیا تھا کہ انہیں اس کو زیر نگرانی رکھنا تھا۔ اسے ایک کمرے میں شفٹ کیا گیا اور جو انجیکشن اماما کو دیے گئے وہ درد بڑھانے والے انجیکشن تھے۔ اماما کو گھر سے غائب اور سالار اپنی کسی فیملی ممبر سے رابطہ منقطع رکھنے کے لیے سی آئی اے کے پاس اس سے بہترین حل نہیں تھا کہ اس کے بچے کی قبل از وقت پیدائش عمل میں لائی جائے۔ اماما انجیکشن لگوانے سے قبل ہسپتال کے کمرے میں ہی پیڈی جبریل اور عنایا کو لے آئی تھی۔ اس وقت بھی اس کا یہی خیال تھا کہ چند گھنٹوں بعد واپس گھر چلی جائے گی، لیکن اسے پہلی بار تشویش تب ہوئی جب اسے درد زیادہ ہونا شروع ہوا اور ڈاکٹر نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ انجیکشن کے ری ایکشن میں شاید انہیں بچے کی زندگی بچانے کے لیے اسے فوری طور پر دنیا میں لانا پڑے گا۔ وہ پہلا موقع تھا جب اماما بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ بچوں کو کہاں بھیجے۔ اس کے ڈاکٹر نے مدد کی پیشکش کی لیکن اماما کے لیے تو یہ ناممکن تھا۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں جنون کی حد تک محتاط تھی۔ وہ پہلی بار جبریل کو گود میں لینے پر بلک بلک کر روئی تھی۔ لگتا تھا اولاد نہیں معجزہ تھا اس کے لیے۔ سالار کہتا تھا وہ جبریل کی عاشق تھی اور وہ ٹھیک کہتا تھا، اسے جبریل کے سامنے واقعی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ عنایا
सलार दोनों कहीं पीछे चले जाते थे। वो इस पर भरोसा करती थी और 4 साल के इस बेटे को हर जगह अपने साथ यूँ रखती थी जैसे वो बहुत बड़ा हो। जिब्रील आम बच्चों जैसी आदत नहीं रखता था। जहानाज बाप से विरसे में मिली थी, लेकिन बर्दाश्त इसने कहाँ से सीख ली यह मामा नहीं जान पाई। जिब्रील में अजीब सी संजीदगी और जिम्मेदारी थी जो इसके मासूम से चेहरे पर पलट सचती थी। वो हर चीज का बेहद खामोशी से मुशाहिदा करने का आदी था। अम्मा कौन सी चीज कहाँ रखती थी ये जिब्रील को याद रहता था। वो सलाह सिकंदर की गैर मौजूदगी में इस घर का बड़ा था। अम्मा को अब बहुत घबराहट हो रही थी। वो चाहती थी इसकी डिलीवरी कम अज कम तब तक टल जाए जब तक सलार अमेरिका पहुंच जाए और वो इससे बात कर ले, इसे सूरत हाल से आगाह करे। वो इसके और बच्चों की फौरी देखभाल के लिए तो कुछ करता ही, लेकिन कम से कम वो इससे डिलीवरी से पहले एक बार बात तो कर लेती। वो खौफ जो हमेशा इसे अपने हसार में लेता रहा था वो अब भी ले रहा था। और क्या हुआ अगर डिलीवरी के दौरान वो मर जाए तो? और ये तो थी जो इसे हर बार ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए सलाह से एक बार माफी मांगने पर मजबूर करती, अपनी एहसानमंदी जताने पर मजबूर करती। लेकिन बस जिंदगी अगर एक जुमले पर आकर अटकती थी तो वो इससे मोहब्बत का इजहार था। वो हुमैन की पैदाइश से पहले मौत के खौफ में मुब्तला हुई थी और इस बार पहले से कई गुना ज्यादा, क्योंकि सलार दूर था, वो तन्हा थी और इसके बच्चे कमसिन। इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, दर्द बढ़ रहा था और डॉक्टर इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना चाहती थी क्योंकि केस नॉर्मल नहीं था, इसे ऑपरेशन करना था। अमामा ने जिब्रील को अनाया की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसे बहन का ख्याल रखने और उसे कभी अकेला ना छोड़ने का कहा था। जिब्रील ने हमेशा की तरह सर हिलाया था फर्माबरदारी से। आप नया बेबी ले आए, मैं इसे बेबी का भी ख्याल रखूंगा। 4 साल जिब्रील ने इंग्लिश में माँ को तसल्ली दी और इसकी तसल्ली से मामा के होठों पर इस तकलीफ में भी मुस्कुराहट आई थी। ऑपरेशन थिएटर जाने से कबल इसने दोनों को गले लगाकर चूमा। यूट्यूब पर किसी ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक स्याह फार्म ब्रुकलिन के पसमानदा हिस्से में एक पास से गुजरने वाली गाड़ी से यकदम निकलने वाले 2 सफेद फार्मों से लड़ता नजर आया। वीडियो इस बिल्डिंग में रहने वाले एक स्याह फार्म 9 उम्र बच्चे ने हैंडीकैम से बनाई थी जो इस जगह से बिल्कुल करीब एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की खिड़की से स्कूल प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक वीडियो शूट कर रहा था। मेरे पड़ोसी इसने अपनी गली में शुरू होने वाली इस लड़ाई को इत्तेफाकन लेकिन बड़ी दिलचस्पी से ये सोचते और कमेंट्री करते हुए रिकॉर्ड किया था कि वो इस इलाके में होने वाले स्ट्रीट फाइट को भी अपनी तरह के इम्तियाजी फीचर के तौर पर पेश करेगा, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि वो स्ट्रीट फाइट गोलियां मारने पर खत्म होगी। CIA की बदकिस्मती ये थी कि वो वीडियो बहुत करीब से बनाई गई थी और इसमें नजर आने वाले तीनों अफराद के चेहरे वाजे थे। इस बच्चे ने वीडियो शूट करते हुए भी चिल्ला चिल्लाकर इन दोनों अफराद को सियाफाम को खींचकर गाड़ी में डालने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में नाकामी के बाद इसने गाड़ी का नंबर प्लेट जूम करके रिकॉर्ड किया था। पुलिस को वो वीडियो देने से पहले से वो वीडियो सियाफामों के साथ अमेरिका में होने वाली ज्यादती पर मबनी एक वेबसाइट पर मुंतकिल की थी और इस वेबसाइट ने इसे यूट्यूब पर इस पर बेशुमार लोगों ने रद्द अमल का इजहार किया। वो वीडियो यूट्यूब से अब न्यूज चैनल पर आ गई थी और वहां से बैनुल अक़वामी नेटवर्क पर। पेट्रियाज एबिका को पहचानना मुश्किल नहीं था, वो जल्द पहचाना गया। तूफान यूट्यूब पर क्या मचा था? तूफान तो वो था जो CIA के हेडक्वार्टर्स में आया था। एक आसान तरीन समझने वाला ऑपरेशन CIA के मुंह पर जिल्लत और बदनामी थोपने वाला था। साथ अमरीकी हुकूमत और वर्ल्ड बैंक भी फंसने वाले थे। कभी कभी इंसान को इसकी बेवकूफ़ी नहीं, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है और CIA के साथ भी इस वक्त यही हुआ था। वो इसे किसी जख्मी का हादसा दिखाकर इसे जान छुड़ाना चाहते थे और ये काम वो वाशिंगटन में करना चाहते थे जहाँ सलार सिकंदर मौजूद था। और इस दिन वाशिंगटन में सिर्फ एक हादसा हुआ था जिसका एक जख्मी पेट्रिस एबिका को जाहिर करके दोनों का तबादला किया गया था। हॉस्पिटल इंतजामिया को एबिका का हवाले से मालूमात थी। इसकी हालत मुसलसल बिगड़ रही थी और CIA सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से इसे अपने ठिकाने पर ले जाकर भी इससे कोई काम की बात ना पूछ सकी। तो अब इससे वो आखिरी काम लेना था जिसके लिए इसे वाशिंगटन पहुंचाया गया था और जिसके लिए न्यूज चैनल बार बार इस हादसे के जख्मी और मरने वालों के नाम सिर्फ नाम चलाने गए थे, बल्कि इनकी पासपोर्ट साइज की तस्वीरें भी। CIA को यकीन था कि न्यूज चैनल पर चलने वाली यह खबर सलार के इल्म में जरूर आएगी और उन्हें यह भी यकीन था कि सलार इससे मिलने जरूर जाता। अंदाजे दुरुस्त साबित होने में वो खबर सलार ने देख भी ली थी और वो फौरी तौर पर इससे मिलने भी चला गया। सलार को हॉस्पिटल आने जाने में तकरीबन 2 घंटे लगे और इतनी ही वक्त चाहिए था CIA को इसकी कमरे में से लैपटॉप समेत हर चीज को सफाया करने के लिए जिसे वो काम की समझते थे। सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसे इसका प्लान था, लेकिन नतीजा वो नहीं निकला जिसकी इन्हें तवक्को थी।
वो वीडियो इन्हें ले डूबी थी। कोई भी इस वीडियो में नजर आने वाले चेहरे की नकुश नहीं भूल सकता था। वो हादसे में जख्मी होकर मरने वाले एबिका की शनाख्त नहीं बदल सकते थे। वो न्यूज चैनल पर एबिका की तस्वीर ना चलवा चुके होते तो इस हादसे की फौरी बाद शदीद जख्मी फर्द के तौर पर तो शायद सीआईए यही करती और रेबेका को वाशिंगटन के इस हॉस्पिटल से फौरी तौर पर वापस न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया जाता। लेकिन वो एक गलती के बाद दूसरी नहीं और तीसरी और चौथी गलती भी कर बैठे थे। इस जलती आग को बुझाने की कोशिश बहुत जल्द शुरू की गई। उन्होंने यूट्यूब से इस वीडियो को मिटाने की कोशिश की। वो इसे ब्लॉक नहीं कर सकते थे क्योंकि ये शोर शराबे को बढ़ा देता, लेकिन बार बार अपलोड होने वाले लिंक्स को मिटा रहे थे और इसमें कोशिश के बावजूद नाकाम हो रहे थे। वो एक अमेरिका से कांगो पहुंच गई थी। एबिका की मौत की वजह क्या हो सकती थी, कौन इसे मार सकता था और क्यों मार सकता था, इसको वो सिर्फ शख्स बता सकता था जिसका नाम एबिका को ऊपर के सामने कई बार ले चुका था, जो वाशिंगटन में इससे मिलने के लिए आने वाला वाहिद मुलाकाती था। अमेरिका के हर न्यूज चैनल पर इस रात सलाह सिकंदर के नाम के हवाले से चल रहा था और हर कोई सलाह सिकंदर से राब्ता करने में नाकाम था। इस रात अपने होटल के कमरे में बैठे इन तमाम न्यूज चैनल की कवरेज माउथ दिमाग के साथ सलार भी देख रहा था, सीआईए भी देख रही थी और वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे करता धरता भी, जो 2 दिन से सलार सिकंदर को हरासा करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा बैठे थे। फिरयास एबिका को इस वीडियो में निशाना बनते देखकर सलार को इस रात यकीन हो गया था कि इसकी फैमिली जिंदा नहीं है। वो लोग अगर एबिका को मार सकते थे तो वो इसकी फैमिली क्या शे थी। इस रात अगर इसे किसी शे में दिलचस्पी थी तो वो सिर्फ अपनी फैमिली की जिंदगी थी और कुछ नहीं, अपना आप भी नहीं। और सीआईए में इस ऑपरेशन को करने वाले लोग इस रात सिर्फ एक बात सोच रहे थे कि सलार सिकंदर का क्या करना था। अब जिंदा रखना था, मार देना था, जिंदा रखना था तो फिर इसकी खुलने वाली वो जुबान कैसे बंद रखे जो वर्ल्ड बैंक समेत बहुत से दारुल हुकूमतों में भूचाल बर्पा करती। मार देते तो कैसे मारते कि इसकी मौत एबिका की तरह सीआईए के मुंह पर एक और बदनामी के धब्बे का इजाफा न कर देती और फिर कंशासा में मौजूद इसकी फैमिली की जिंदगी के जरिए इसे ब्लैकमेल करते। कैद में वो इसे रख नहीं सकते थे, जिंदगी या मौत, जिंदगी मौत। फिर फैसला हो गया था, लेकिन वो सीआईए ने नहीं बल्कि कांगो के अवाम ने किया था। 4 साल जिब्रील ने अपने खानदान को दरपेश आने वाले बहरान में जो रोल अदा किया वो इसने जिंदगी में कई बार अदा करना था। अमामा के जाने के बाद पेडी को अचानक ख्याल आया कि अमामा इसे घर से कुछ चीजें लाने का कह गई थी। पेडी ने सोचा कि वो वहां बच्चों को अकेला छोड़ने के बजाय अपने साथ ले जाएगी, फिर वापस ले आएगी। जिब्रील ने इसे साथ ले जाने वाली की कोशिश के जवाब में साफ इनकार करते हुए इसे याद दिलाया कि मम्मी ने इसे कहा था कि वो वहीं रहेंगी, वो इन्हें साथ नहीं ले जाएगी। पेडी को याद आया और उसने दोबारा स्टार नहीं किया। वो जिब्रील को जानती थी, 4 साल की उम्र में भी वो बच्चा किसी तोते की तरह माँ बाप की बातें रट कर फिर वही करता था और मजाल थी कि किसी दूसरे की बातों में आकर वो मामा और सलार को किसी हिदायत को फरामोश करता। पेडी ने मामा की डॉक्टर की एक असिस्टेंट के पास छोड़कर फौरी तौर पर घर चली गई। इनकी अदम मौजूदगी में अनाया को नींद आने लगी थी। डॉक्टर के असिस्टेंट ने नींद में झूलती हुई 2 साल की इस बच्ची को उठाकर एक बेंच पर डालने की कोशिश की और जिब्रील ने इसे रोक दिया। वो वहां से अनाया समेत हटना नहीं चाहता था जहां पेडी इन्हें बिठा कर गई थी। असिस्टेंट कुछ हैरान होकर वापस अपनी टेबल पर गई। वो एक इंटरेस्टिंग बच्चा था। इसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए इसे देख कर सोचा। 2 साल अनाया अब जिब्रील की गोद में सर रखे सो रही थी और वो बेहद चौकन्ना बैठा बहन के सर को अपने नन्हे नन्हे बाजुओं के हल्के में लिए मुलाकाती कमरे में आने जाने वालों को देख रहा था। और तब वो औरत इन दोनों के बराबर आकर बैठ गई। उसने जिब्रील को एक मुस्कुराहट दिए हुए इसका सर थपथपाया और जवाबन इस बच्चे के तासुरात ने इसे समझा दिया कि इसे ये बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगी। इस औरत ने दूसरी बार सोई हुई अनाया के बालों में उंगलियां फेरने की कोशिश की तो इस बार जिब्रील ने इसका हाथ बड़ी नरमी से परे करते हुए सरगोशी में कहा, शी इज स्लीपिंग। ओह सॉरी। अमेरिकन डॉग औरत इसे देखकर मुस्कुराई। इस औरत ने अपना पर्स खोलकर इसमें से चॉकलेट की एक बार निकालकर जिब्रील की तरफ बढ़ाई। नो थैंक्स। जवाब चॉकलेट पढ़ाने से भी पहले आ गया। मेरे पास कुछ खिलौने हैं। इस बार इस औरत ने जमीन पर रखे एक बैग से एक स्टफ्ड खिलौना निकाल कर जिब्रील की तरफ बढ़ाया। इसके साथ मेरी की दीवार तोड़ने की यह आखिरी कोशिश थी। जिब्रील ने इस खिलौने पर नजर डालते हुए निहायत शाइस्तगी से इससे कहा, आप हमें तंग करना बंद करेंगी प्लीज। एक लम्हे के लिए वो औरत चुप ही रह गई थी। ये जैसे शट अप कॉल थी, मगर वो वहां मुंह बंद करने के लिए नहीं आई थी। इन्हें इन दोनों बच्चों को वहां से ले जाना था और इनका ख्याल था आते जाते मुलाकातियों में 2 कमसिन बच्चों को बहला फुसला कर वहां से लेके जाना कौन सा मुश्किल था। जोर जबरदस्ती वो इतने लोगों के सामने अनाया के साथ कर सकते थे, जिब्रील के साथ नहीं। अब वो मुंतजिर थी कि अनाया की तरह वो 4 साल बच्चा भी थक कर सो जाए, फिर शायद इनको किसी तरह वहां से हटा दिया जाता।
وہ 10-15 منٹ بیٹھے رہنے کے بعد وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسے ان بچوں کے حوالے سے نئی ہدایت لینی تھی اور 5 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو پیڈی وہاں ان کے پاس موجود تھی۔ وہ عورت ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، صرف اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتے تھے جب تک امریکہ میں سالار کے ساتھ معاملات طے نہ ہو جاتے۔ انایا اب جاگ گئی تھی۔ اسے باتھ روم جانا تھا۔ پیڈی اسے باتھ روم لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس نے جبریل کو ایک بار پھر وہیں ٹھہرنے کا کہا لیکن وہ نہیں ٹھہرا۔ وہ کسی بھی طرح انایا کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنے پہ تیار نہیں تھا۔ پیڈی کو اسے بھی باتھ روم لے جانا پڑا۔ وہ عورت بھی ان کے پیچھے باتھ روم آئی تھی اور جبریل نے اس عورت کو ایک بار پھر نوٹس کیا تھا۔ تم ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ بیسن میں ہاتھ دھونے میں مصروف عورت اس بچے کا جملہ سن کر جسے ایڑیوں پر گھومی تھی۔ پیڈی نے اس عورت کو دیکھا اور معذرت خواہانہ انداز میں مسکرائی جیسے وہ جبریل کو اس بات سے متفق نہیں تھی۔ 45 سال کی اس عورت نے مسکراتے ہوئے 4 سالہ بچے کو سراہا تھا۔ وہ پہلی بار ایک 4 سالہ بچے سے پسپا ہوئی تھی۔ وہ جن بھی ماں باپ کی اولاد تھی، کمال تربیت ہوئی تھی اس کی۔ پیڈی ان دونوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی لیکن وہ عورت نہیں گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس بچے سے وہ جملہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ بہتر تھا اس کے بھیجنے والے اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے۔ پیڈی اماما سے 1.5 گھنٹے بعد بھی نہ مل سکی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا وہ ہوش میں نہیں ہے۔ آپریشن ٹھیک ہوا تھا لیکن اسے خواب اور دوائیاں دی جا رہی تھی۔ پیڈی نے اماما کے فون سے بار بار سالار کا نمبر ملانے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام ہوئی۔ وہ اسے اس کے بیٹے کی خبر دینا چاہتی تھی اور ساتھ یہ اطلاع بھی کہ اس کے بچے ان کے پاس محفوظ ہیں۔ پیڈی نے بار بار اماما سے ملنے کی کوشش کی کیونکہ اب انایا بھی بے قرار ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ان کو ٹویٹر میں پڑا ہومین تو دکھا دیا تھا لیکن اماما تک رسائی نہیں دی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے دونوں بچوں کو اس کی تحویل میں دینے کا کہا اور ہمیشہ کی طرح جبریل اڑ گیا تھا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں اور تھکاوٹ کے باوجود انایا کا ہاتھ پکڑے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ ممی نے اسے انایا کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ اس نے وہ بیبی بوائے بھی دیکھ لیا تھا لیکن ممی کہاں تھی؟ یہ سوال اب صرف اسے ہی نہیں پیڈی کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ وہ اب کنشاسا میں سالار کے آفس کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے میں مصروف تھی لیکن سالار غائب تھا اور کانگو میں ورلڈ بینک پر قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ پیٹریسس ایبکا اپنی موت کے 24 گھنٹوں میں صرف کانگو کی پگمیز کا نہیں بلکہ پورے افریقہ کا ہیرو بن گیا تھا۔ اس خطے نے آج تک صرف بکنے والے حکمران دیکھے تھے، خطے نے ہیرو پہلی بار دیکھا تھا، جان دینے والا ہیرو۔ ایبکا ساری زندگی پرامن طریقوں سے جدوجہد کرنے والا تھا اور اس کا درس دیتا تھا لیکن اپنی موت کے بعد اس کی جو وصیت منظر عام پر آئی تھی اس میں اس نے پہلی بار غیر متوقع اور غیر فطری موت کی صورت میں اپنے لوگوں کو لڑنے کے لیے اکسایا تھا۔ اس جنگل کو بچانے کے لیے انہیں سفید فاموں کو مار بھگانا تھا چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اپنی اس وصیت میں اس نے ورلڈ بینک، امریکہ اور ان دوسری عالمی طاقتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ان سب کے خلاف جہاد کرنے کا کہا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن مذاہب کا تقابلی جائزہ لیتا رہا تھا اور اسے اپنے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ظلم کے خلاف بغاوت کے لیے جہاد سے زیادہ موزوں لفظ نہیں ملا تھا۔ اس نے صرف پگمیز کو مخاطب کیا تھا، صرف انہی جنگلوں سے نکل کر شہروں میں آ کر لڑنے کا کہا تھا۔ ورلڈ بینک اور ان آرگنائزیشنز کے ہر دفتر پر حملہ کر کے وہاں کام کرنے والوں کو مار بھگانے کا کہا تھا لیکن اس رات وہ صرف پگمیز نہیں تھے جو ایبکا کی کال پر ورلڈ بینک کے ساتھ ان غیر ملکی آرگنائزیشنز پر چڑھ دوڑے تھے۔ وہ کانگو کے استعماریات کے ہاتھوں سالوں سے احتجاج کا شکار ہوتے ہوئے عوام تھے جو باہر نکل آئے تھے۔ کنشاسا میں اس رات تاریخ کے وہ سب سے بڑے فسادات ہوئے تھے جس میں کوئی سیاہ فام نہیں، صرف سفید فام مارے گئے تھے۔ ورلڈ بینک کے آفسوں پر حملہ کر کے اسے لوٹنے کے بعد اس کو آگ لگا دی گئی تھی اور یہ سلسلہ صرف وہاں تک نہیں رکا تھا۔ ورلڈ بینک کے حکام کے رہائش گاہوں پر بھی حملے، لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی تھی اور ان میں سالار سکندر کا گھر بھی تھا۔ وہ سالار سکندر کا گھر نہیں تھا جسے آگ لگائی گئی تھی، وہ ورلڈ بینک کے سربراہ کا گھر تھا جسے ہجوم نے اس رات تباہ کیا تھا۔ ورلڈ بینک کے 40 افراد ان فسادات میں مارے گئے تھے اور یہ نچلے عہدوں پر کام کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ وہ ورلڈ بینک کی سینئر اور جونیئر مینجمنٹ تھی، اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر اور نامور لوگ۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ورلڈ بینک اور CIA ہیڈ کوارٹرز میں آپریشن روم کی دیواروں پر لگی اسکرینوں پر تینوں اداروں کے سینئر حکام دم سادے بے بسی کے ساتھ کانگو میں ہونے والے ان فسادات کے مناظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں بچانے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن فوری طور پر کوئی بھی کانگو کے ان فسادات میں عملی طور پر کود سکتا تھا۔ جو جانی اور مالی نقصان ہوا تھا وہ پورا کر لیا جاتا لیکن جو ساکھ اور نام ڈوبا تھا اسے بحال کرنے کے لیے کوئی معجزہ چاہیے تھا۔ ان فسادات کے آغاز سے بالکل پہلے اینڈرسن کوپر نے ایبکا کے ساتھ ہونے والے اس آف کیمرا سیشن کو اپنے پروگرام میں چلا دیا تھا
तब तक इसे अंदाजा नहीं था कि इस रात कॉन्गो में क्या होने वाला था। इस सेशन में एबिका ने अमेरिका और वर्ल्ड बैंक पर शदीद तनकीद करते हुए इन्हें अपने गिद्ध और डाकू करार दिया था, जो कॉन्गो को नोच नोच कर खा रहे थे और कोई इनका हाथ नहीं रोक पा रहा था। पेट्रोस एबिका का वो आखिरी इंटरव्यू अफ्रीका में लोगों ने स्टेडियम और चौकों पर रोते हुए बड़ी स्क्रीनों पर सुना था, और इसकी गुफ्तगू में वर्ल्ड बैंक के सिर्फ एक ओहदेदार की तारीफ थी जो बैंक को इस प्रोजेक्ट की इंक्वायरी पर मजबूर कर रहा था, और ऐसा ना करने पर वो वर्ल्ड बैंक को छोड़ देना चाहता था। एबिका ने अपनी जिंदगी को लाहक होने वाले खतरात की बात भी की थी और ये भी कहा था कि वो ताकतें जो इसे मार डालना चाहती हैं वो सालार सिकंदर को भी मार डालेंगे। सालार सिकंदर का नाम पेट्रियास एबिका के बाद एक रात में अफ्रीका में ज़बान-ए-ज़द आम हो गया था। अफ्रीका में वैसी शोहरत पहली बार किसी गैर मुल्की को नसीब हुई थी, और वो गैर मुल्की इस वक्त वॉशिंगटन में अपने कमरे में टीवी पर ये सब देख रहा था। फिर बार बार बाहर जाकर पाकिस्तान फोन करके अपनी फैमिली के बारे में सिकंदर से पता करने की कोशिश कर रहा था। काश इसे वो नामवरी ना मिलती, इसने सोचा। न्यूज चैनल पे बता रहे थे कि कंट्री हेड समेत सारे घरों को लूटा गया था और बहुत से घरों में अमवात भी हुई हैं। कुछ अफसरान की बीवियों पर हमले हुए हैं और किसी के बच्चे मारे गए। टीवी पर वो सब कुछ देखते हुए वो शदीद परेशान था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? इसने अटेंडेंट की शक्ल देखते ही होशो हवास संभालने के बाद सबसे पहला सवाल यही किया था। वो कुछ देर में आपके पास आ जाएंगे, आपको हॉस्पिटल से कहीं मुंतकिल करना है, अटेंडेंट ने बेहद मुअद्दब अंदाज में कहा। अमामा ने बिस्तर से उठने की कोशिश की और बेख्तियार कराह कर रह गई। जख्म वाली जगह अब सुन नहीं रही थी। इसे लगा जैसे किसी ने एक खंजर इसके पेट में घोंपा है। अटेंडेंट ने जल्दी से आगे बढ़कर इन्हें लेटने में मदद की और फिर ट्रे में एक इंजेक्शन उठाकर सिरिंज में भरने लगी जो वो लाई थी। मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैंने अपने बच्चों को देखना है, अमामा ने बेहद जोशी से इसे कहा। ये आपकी तकलीफ कम कर देगा, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है, अटेंडेंट ने कहते हुए ग्लूकोज की बोतल में सिरिंज की सुई घोंप दी। अमामा ने अपने हाथ की पूंछ पर टेप के साथ चिपकाई हुई सिरिंज निकाल ली। मुझे फिलहाल किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, मुझे अपने बच्चों से मिलना है और अपने शौहर से बात करनी है। वो इस बार जख्म की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए इट बैठी और इसने अटेंडेंट का हाथ झटक दिया। वो कुछ देर चुप खड़ी रही, फिर खामोशी से कमरे से निकल गई। इसके वापसी 8 घंटे बाद पेडी जिब्रील और अनाया के साथ हुई। कमरे का दरवाजा खुलते ही वहां पर पहली नजर पड़ते ही जिब्रील और अनाया शोर मचाते हुए इसकी तरफ आए और इसके बिस्तर पर चढ़कर इससे लिपट गए थे। 2 दिन के बाद माँ को देख रहे थे। पेडी भी बेख्तियार लपक कर इनके पास आई। 2 दिन से अमामा को ना देखने पर और डॉक्टर के बार बार की लेत लाल पर अमामा के हवाले से इसके जहन में अजीब वहम आ रहे थे, और अब अमामा को बखैरियत देख कर वो भी जज्बाती हुए बिना ना रह सके। तुमने सलार को इतला दी? अमामा ने पेडी को देखते ही इससे पूछा। मैं कल से इनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इनका नंबर नहीं मिल रहा। मैंने इनके ऑफिस के स्टाफ से भी राब्ता किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि सलार साहब के साथ इनका भी राब्ता नहीं हो पा रहा। अमामा के दिमाग को एक झटका लगा था। कल वो बड़बड़ाई, आज क्या तारीख है? पेडी ने जो तारीख बताई वो इस दिन की नहीं थी जिस दिन इसे हॉस्पिटल लाया गया था। इसने अपना बैग लेकर इसने फिर फोन निकालकर इस पर कॉल करने की कोशिश की। अटेंडेंट ने इन्हें बताया कि हॉस्पिटल के इस हिस्से में सिग्नल नहीं आते। वो इसका मुंह देख कर रह गई थी। अपने सेल फोन पर इसने सब चैट एस और टेक्स्ट मैसेज चेक कर लिए थे। कल से आज तक इसमें कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि वो पेडी से कुछ पूछे, इसने इसे कॉन्गो में होने वाले फसादात के बारे में बताया था, और साथ ये भी कि इनके घर पर भी हमला किया गया था। अमामा थक्के में आ गई। ये वो पहला लम्हा था जब अमामा को सलार के हवाले से बेकरारी हुई। पेट्रिस एबिका मारा गया था तो सलार कहाँ था? वो भी तो वॉशिंगटन में था। पेडी ने इसे न्यूज चैनल पर चलने वाली सारी खबरें बता दी थी। एबिका कैसे मारा गया और कैसे इसकी मौत सामने आई, और इससे आखिरी बार मिलने के लिए जाने वाला सलार सिकंदर था और वो इसी वक्त से गायब है। अमामा के हाथ कांपने लगे थे। इसका ख्याल था कि इसे दुनिया में सबसे ज्यादा जिब्रील से मोहब्बत थी, लेकिन अब जब सलार इसकी जिंदगी से कुछ देर के लिए अजीब तरह से गायब हुआ था तो इसके औसान खता होने लगे थे। वो जिब्रील और अनाया को इसी तरह बिस्तर पर छोड़कर दर्द से बेहाल होते हुए भी लड़खड़ाते कदमों से फोन लिए कमरे से बाहर निकल आई। इसे हॉस्पिटल में इस जगह जाना था जहाँ से वो इससे बात कर सकती थी। इसे इसके घर तबाह होने का भी ख्याल नहीं आया था। घर, बच्चे, सब कुछ यकदम इसे एक शख्स के सामने बेमायने हो गया था, जो इसका साहिबान था, जो जिंदगी की धूप में इसके लिए तब छांव बना था जब इसका वजूद हिद्दत से झुलस रहा था। अटेंडेंट और पेडी ने इसके रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुकी। वो नंगे पांव फोड़े की तरह दुखते जिस्म के साथ कॉरिडोर में निकल आई थी। सलार वहां होता तो इसे इस हालत में बिस्तर से भी उठने नहीं देता, लेकिन मसला ये ही था कि सलार वहां नहीं था। इसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था।
یہ موسم نہیں تھا جو اسے لرزا رہا تھا، خوف تھا جو رگوں میں خون جما رہا تھا، اس کا پورا جسم پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کی ان سے بات کروا دیتی ہوں۔ امامہ چلتے چلتے ساکت ہوئی اور اٹینڈنٹ کی آواز پر پلٹی اور پھر وہاں کھڑے کھڑے موم کی طرح پگھلنے لگی۔ CIA اور ورلڈ بینک کے ساتھ امریکن گورنمنٹ کو ایک ہی وقت میں سالار کی ضرورت پڑی تھی۔ کونگو میں اگر اس وقت کوئی ان کی عزت بحال کرنے کی پوزیشن میں تھا تو وہ سالار سکندر ہی تھا۔ پاور گیم ون مین شو بن گیا تھا۔ امریکہ میں جو آگ ایبکا کی موت نے لگائی تھی وہ آگ سالار سکندر کی زندگی ہی بجھا سکتی تھی۔ فیصلہ تاخیر سے ہوا تھا لیکن ہو گیا۔ اس آپریشن کے تباہ کن نتائج نہ صرف CIA میں بہت سے لوگوں کی کرسیاں لے جانے والے تھے بلکہ ورلڈ بینک میں بھی بہت سے سر کٹنے والے تھے۔ تاج کہیں اور رکھا جانے والا تھا۔ سالار اس سب سے بے خبر ہوٹل کے کمرے میں اب بھی نیوز چینل دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنے باپ سے بات کر کے آیا تھا۔ سالار کے سر میں درد شروع ہوا تھا۔ What is next to XTC؟ کیا سوال تھا، کیا یاد دلایا تھا، کیا یاد آیا تھا؟ پین۔ And what is next to پین؟ اتنے سال بعد ایک بار پھر وہ سوال و جواب اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے۔ آخر کتنے مواقع آئے تھے زندگی میں اسے سمجھانے کے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، عدم وجود، خالی پن۔ And what is next to nothingness؟ اس کا اپنا سوال ایک بار پھر اس کا منہ چڑھانے آیا تھا۔ ہیل، جہنم کوئی اور جگہ تھی کیا؟ اس نے بے اختیار کراہتے ہوئے سوچا۔ 2 دن بعد اس کا سیل فون جس سے موت کی نیند سے جاگا تھا، وہ میوزک اور وہ روشنی، اسے لگا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ میوزک اس نے امامہ کی کالر ID کے ساتھ محفوظ کیا ہوا تھا۔ سیل فون پر اس کا مسکراتا چہرہ، اس کا نام۔ سالار کو لگا وہ واقعی جنت میں کہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی لیکن ہیلو نہیں کہہ سکا۔ وہ امامہ نے کہا تھا، بے قرار، بے آواز، وہ بول ہی نہ سکا۔ سانس لیتا تو بہت بڑی بات تھی، اپنے قدموں پر کھڑا تھا تو کمال تھا۔ دوسری طرف سے وہ بے قراری سے اس کا نام لے رہی تھی، بار بار۔ سالار کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ آواز اسے ہرا کر رہی تھی، کسی بنجر سوکھے پیڑ پر بارش کے بعد بہار میں پھوٹنے والی سبز کونپلوں کی طرح۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے رو نہیں سکتا تھا۔ وہ مرد تھا، بولنا مشکل تھا پر بولنا ضروری تھا۔ امامہ، اس نے اپنے حلق میں پھنسے ہوئے نام کو آزاد کیا تھا۔ دوسری طرف وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ عورت ہی یہ کام آسانی سے کر سکتی تھی۔ وہ بے آواز روتا رہا۔ وہ دوزخ سے گزر کر آئے تھے، بے آواز روتے ہوئے۔ سالار نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس کمرے کے درمیان میں امامہ کی ہچکیاں اور سسکیاں سنتے اپنے جوتے اتارے، پھر وہ گھٹنوں کے بل سجدے میں جا گرا تھا۔ کئی سال پہلے وہ ریڈ لائٹ ایریا میں امامہ کے نہ ہونے پر اسی طرح ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں جا گرا تھا۔ آج وہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں گرا تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا اور طاقتور ہے۔ He is cute۔ جبریل نے حمین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد 3 لفظوں میں بڑے محتاط اور محفل انداز میں اپنے خاندان میں اس نئے اضافے پر تبصرہ کیا تھا۔ اس کے برعکس عنایہ بڑے اشتیاق سے فالحانہ انداز میں ایک چھوٹے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس کی آمد کے بارے میں وہ مہینوں سے سن رہی تھی۔ امامہ کی باتیں سن سن کر اسے چھوٹے بھائی سے زیادہ اس پری کو دیکھنے کی دلچسپی ہو گئی تھی جو ان کے گھر روز یہ دیکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں۔ وہ امامہ سے زیادہ پری کے بارے میں اشتیاق سے پوچھتی تھی۔ جبریل نے نہ کبھی بھائی کے بارے میں سوال کیا نہ ہی پری کے بارے میں، کیونکہ اسے پتا تھا ممی جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ نہ پریاں ہوتی ہیں نہ بھائی کو پری نے لانا تھا۔ بھائی کو ہسپتال سے آنا تھا اور ہسپتال خود جانا پڑے گا، اور وہ بھی کار سے، سڑک کے ذریعے اس ہسپتال میں جہاں وہ ممی کے ساتھ جاتے تھے۔ لیکن اس نے یہ معلومات صرف عنایہ کے ساتھ تنہائی میں شیئر کی تھی، امامہ کے سامنے نہیں۔ کیا مما جھوٹ بولتی ہیں؟ عنایہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی، لیکن تم چھوٹی ہو اس لیے وہ تم سے کہتی ہیں۔ اس نے بڑے معتبرانہ انداز میں بہن کو سمجھایا تھا۔ وہ اس وقت امریکن ایمبیسی کے اندر موجود ایک چھوٹے سے میڈیکل ہاؤس میں تھے۔ وہ طوفان جو ان کی زندگی اڑانے آیا تھا کچھ بھی تہس نہس کیے بغیر قریب سے گزرتا چلا گیا۔ امامہ اپنے بچوں کے ساتھ سالار سے بات چیت کے بعد اب پرسکون تھی۔ اس نے وقفے سے پاکستان میں سب سے بات کی تھی اور سب سے حمین کی پیدائش پر مبارکباد وصول کی تھی۔ سالار نے اسے ہر بات سے بے خبر رکھا تھا۔ فون پر ان کی لمبی بات نہیں ہو سکی تھی۔ سالار نے اسے آرام کرنے کا کہا تھا۔ اس نے امامہ سے کہا تھا کوئی سگنلز اور سیٹلائٹ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا رابطہ اس سے نہیں ہو پا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا۔ امامہ نے اس سے ایبکا کے حوالے سے بات کی تو اس نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے، وہ پریشان نہ ہو، اس کی زندگی کا خطرہ نہیں، وہ اس سلسلے میں پولیس سے رابطے میں ہے۔ امامہ مطمئن ہو گئی تھی۔
पेडी अब भी इसके साथ थी और वो कमरे में चलते हुए टीवी पर कांगो के हालात के हवाले से चलने वाली खबरें देख रही थी। जहाँ एबिका का जिक्र आ रहा था वहाँ सलार सिकंदर का भी जिक्र हो रहा था। इस इंटरव्यू की झलकियां भी बार बार चल रही थी, जिसमें एबिका ने बार बार सलार के बारे में अच्छे अल्फाज में बताया था और इसकी अपनी जिंदगी के हवाले से लाहक खतरात का भी जिक्र किया था। सलार से बात करने के बाद अमामा की जो परेशानी खत्म हुई थी एक बार फिर सर उठाने लगी। वो मुसीबत में था लेकिन इसे क्यों बेखबर रख रहा था। अमामा को इसका एहसास होने लगा था। वो वहाँ बैठ कर इससे फोन पर सवाल करना नहीं चाहती थी। वो इसके सामने बैठ कर इससे पूछना चाहती थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। मम्मी, जिब्रील ने इसे मुखातिब किया, पापा को कौन मानना चाहता है? वो इसके सवाल पर मुंजमद हो गई थी। अमामा को टीवी देखते हुए अंदाजा नहीं हुआ था कि वो भी इसके साथ बैठा हुआ वो सब देख और सुन रहा है। वो बला का ज़हीन था अपने बाप की तरह। अमामा और सलार इसके सामने गुफ्तगू में बहुत मोहतात रहते थे। अमामा ने टीवी ऑफ कर दिया। वो अब इसे टालना चाहती थी। कोई आपके बाबा को नहीं मानना चाहता, इसने जिब्रील को अपने साथ लगाते हुए कहा। अल्लाह आपके पापा की हिफाजत कर रहा है और हम सब की भी। वो इसे थपथपाते हुए बोली। अल्लाह ने पेट्रियस एबिका की हिफाजत क्यों नहीं की? अमामा लाजवाब हो गई। जिब्रील के सवाल इसे हमेशा लाजवाब कर देते। वो बहस नहीं करता था, सिर्फ पूछता था, जवाब सुनता था, सोचता था और खामोश हो जाता था। मगर अमामा समझ ना पाई कि इसके जवाब ने इसे कायल किया था या नहीं। वो बच्चा गहरा था, इसका एहसास इसे था, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं था कि वो अपने माँ बाप के हवाले से बहुत सारी बातें सोचता था जो वो इनसे पूछता कभी नहीं था। देखो तुम्हारा छोटा भाई कैसा लगता है तुम्हें? अमामा ने मौजू बदलने की कोशिश की। ही क्यूट, इसने जवाब दिया। तुम्हारे जैसा लगता है ना? अमामा ने इसे खुश करने की कोशिश की। मुझे तो नहीं लगता। जिब्रील को शायद माँ की ये मुमासलत अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तुमसे कैसे डिफरेंट है? अमामा ने दिलचस्पी से पूछा। इसकी मूछें हैं, मेरी तो नहीं है। अमामा बेसाख्ता हंसी। वो हमें इनके चेहरे और बालाई लब पर आने वाले रुएं को देख कर कह रहा था, ये मेरी तरह लगता है। अनाया ने बड़ी मध्यम आवाज में अटकते हुए अमामा को मुतला किया था। वो अनाया की मध्यम आवाज पर हंस पड़ी थी। वो एहतियात कर रही थी कि सोया हुआ भाई बेदार ना हो जाए। इन्हें अंदाजा नहीं था वो सोया हुआ भाई नहीं, सोया हुआ जिन था जो बेदार होने के लिए अपने बाप की आमद का इंतजार कर रहा था। सीआईए ने जिस बच्चे को 3 हफ्ते पहले दवाओं के असर से कबल अज वक्त दुनिया में लाने की कोशिश की थी, अगर इन्हें मोहम्मद हुमैन सिकंदर का तारुफ हो जाता तो वो इस पैदाइश को कम से कम 300 साल तक रोकते। मुस्तकबिल से बेखबर अमामा बड़ी मोहब्बत से इसे सोते हुए देख रही थी, जो 2 दिन बाद ही खराटे ले रहा था। क्या ये खराटे लेता है? जिब्रील ने इसे खराटे नोटिस करते हुए बेयकीनी से माँ को देखा। अमामा इसके मुशाहिदे पर हैरान हुई थी। जिब्रील के एहसास दिलाने पर इसने पहली बार गौर किया था। नहीं, वो बस गहरे सांस ले रहा है। मम्मी, क्या ये आपका लास्ट बेबी है? सवाल डायरेक्ट आया था और संजीदगी से किया गया था। अमामा को समझ न आया कि वो हंसे या शर्मिंदा हो। पेरी हंस पड़ी थी। हाँ स्वीट हार्ट, ये लास्ट बेबी है। इसने जैसे जिब्रील को तसल्ली दी। हम 2 भाई और एक बहन हैं। जिब्रील ने उंगलियों को छू कर गिना। हाँ डियर, अमामा ने इसका मुंह चूमकर इसे यकीन दिलाया। इसे पता नहीं था कि इसके घर एक और बच्ची ने परवरिश पाई थी, कनीज गुलाम फरीद और चुन्नी। सिकंदर उस्मान के घर आने वाला वो मेहमान नाकाबिले यकीन था। वो इनके घर कई बार गए थे मुसालहत के तौर पर, ताजियत के लिए, लेकिन हाशिम मुबीन कभी इसके घर नहीं आया था। वो अब इसके पड़ोस में नहीं रहे थे। वो घर बिक चुका था। सिकंदर पहली नजर में इसे पहचान न पाया। इसकी समझ में न आया कि वो इसके साथ क्या रवैया रखें। मुझे अमामा से बात करनी है और मिलना है। चंद ही जुमलों के बाद हाशिम मुबीन ने इनसे कहा था। वो यहाँ नहीं है, सिकंदर ने बड़े मोहताज अंदाज में बताया। मैं जानता हूँ, वो कॉन्गो में है। मैं वहाँ का नंबर लेना चाहता हूँ। वहाँ के हालात खराब हैं। वो ठीक तो है ना? उन्होंने रुक रुक कर एक ही सांस में सारी बातें कही। हाँ, वो सलार और बच्चे ठीक हैं। वो फोन नंबर का मुतालबा बोल कर गए थे। मैं इससे बात करना चाहता हूँ, एक बार इससे मिलना चाहता हूँ। वो अपना मुतालबा नहीं भूला था। मैं मामा से पूछे बिना आपको इसका नंबर या एड्रेस नहीं दे सकता, सिकंदर ने बिला तमहीद कहा। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब इसने थके हुए लहजे में कहा। आप इसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा ही चुके हैं। वो अब अपनी जिंदगी में सेट है, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। आप क्यों एक बार फिर इसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं? आपकी बेटी ने पहले ही आपकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। आप अब इसे छोड़ दें, बख्श दें इसे। हाशिम मुबीन के चेहरे की झुर्रियां एकदम बढ़ी थी। फिर उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, मैं जानता हूँ, मुझे एहसास है।
सिकंदर उस्मान बोल ना सके। इसे ये जुमला सुनने की तवक्को नहीं थी। बस एक आखिरी बार इससे मिलना चाहता हूँ। इसकी एक अमानत है, वो देनी है मुझे और इससे माफी मांगनी है। आप मुझे अपने फोन नंबर और एड्रेस दे दें, मैं इससे बात करूंगा, फिर आपसे राब्ता करूंगा। आप कहाँ रहते हैं आप? सिकंदर ने इससे पूछा। एक ओल्ड होम में। सिकंदर चुप रह गए। हाशिम मुबीन उठ खड़े हुए थे। अमामा को बता दें कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, फिर वो मुझसे बात जरूर करेगी। अपनी निशिस्त से खड़े होते हुए सिकंदर उस्मान अगले जुमले पर दम बखुद रह गए थे। जेकी बेख्तियार हंसी। जवाब गैर मुतवक्का नहीं था। कोई मर्द इसकी कशिश के सामने नहीं कह सकता था। ओह वाओ ग्रेट। जेकी ने चैंपियन का एक और घूंट लेते हुए कातलाना मुस्कुराहट के साथ इससे कहा, मैं एक राज का ताल्लुक पर यकीन रखता हूँ, लेकिन सिर्फ हूरों के साथ। इस शख्स का अगला जुमला इसकी समझ में नहीं आया। हूर? वो कौन है? इसकी समझ में न आया। सलार सिकंदर ने अपने वॉलेट से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर इसकी पुष्ट पर पेन से कुछ लिखा और उंगलियों के नीचे दबाए हुए इसे जेकी की तरफ बढ़ा दिया। जेकी ने अरबी में लिखा एक जुमला देखा। ये क्या है? मैं इसे पढ़ और समझ नहीं सकती। इसे कंधे उचकाकर सलार को देखा, जो अब अपने क्लास के नीचे कुछ नोट दबाते हुए इससे कह रहा था, मैंने तुम्हारी ड्रिंक्स की अदायगी कर दी है। जेकी ने उंगली और अंगूठे में दबे इस कार्ड को सलार को दिखाया और दोबारा कहा, मैं ये पढ़ और समझ नहीं सकती। जिन्होंने आपको भेजा है वो पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे और समझा भी देंगे। जेकी को इसके जुमले पर करंट लगा। इसकी मुस्कुराहट सबसे पहले गायब हो गई। एक्सक्यूज मी। इसने लाइलमिल का इजहार करने की कोशिश की। एक्सक्यूज। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। सीआईए हेडक्वार्टर में बैठे होटल के कमरे को कंडक्ट करके और खुफिया कैमरे और माइक्रोफोन की मदद से गुफ्तगू सुनते इन 5 लोगों को पसीना आया। उन्होंने बेख्तियार एक दूसरे को देखा और इस शख्स को गाली दी थी। वो इस शख्स को पेश किए जाने वाले खराज तहसीन था। वो इस फंदे से बच कर निकलने वाला पहला मर्द था। इस कार्ड पर क्या लिखा है? सीआईए की सिटिंग टीम के लीडर ने आध घंटे बाद जेकी के इस कमरे में आने से पहले वहां बुलवाने वाले अरबी मुतरजम से पूछा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मुतरजम ने तहरीर पढ़ी। मतलब, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। मुतरजम ने रवानी से अंग्रेजी में तर्जुमा किया। इन सब लोगों ने जेकी और जेकी ने इन्हें देखा, फिर कातलाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि ये मेरे बारे में नहीं। ऑपरेशन के दौरान न्यूरोसर्जन चंद लम्हों के लिए रुका। एक नर्स ने बिना कहे इसके माथे पर उभरने वाले पसीने के कतरों से साफ किया। वो एक बार फिर अपने सामने टेबल पर खुले पड़े इस दिमाग पर झुका जो दुनिया के ज़हीन तरीन दिमागों में से एक था और जो एक गोली का निशाना बनने के बाद इसके सामने था। वो अमेरिका की तारीख का कम उम्र और सबसे काबिल सर्जन था, लेकिन आज उसे पहली बार लग रहा था कि इसका 100% कामयाबी का रिकॉर्ड खत्म होने वाला है। वो टेबल से हटा। इसे किसी चीज की जरूरत पड़ी थी इस ऑपरेशन में कामयाबी के लिए। खिड़की से सलार ने वॉशिंगटन में डूबते हुए सूरज पर एक आखिरी नजर डाली। डूबते हुए सूरज की तारीकी शुआएं जहाज की दूधिया परों को भी एक रो पहला रंग दे रही थी। जहाज अब इन हजारों फीट की बुलंदी पर था, न आसमान पर न जमीन पर, और ये कैफियत सलार की भी थी। 37 साल की उम्र में वो वर्ल्ड बैंक का कम उम्र तरीन वाइस प्रेसिडेंट था और इसकी तैनाती 4 दिन पहले हुई थी। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक हंगामी इजलास ने मुतफिका तौर पर इसे अफ्रीका के लिए नया नायब सदर, नया चेहरा चुना था। अमेरिका का हर छोटा बड़ा चैनल इस वक्त एक ही खबर ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चला रहा था कि सलार सिकंदर की जिंदगी खतरे में थी और वो गायब क्यों था। वो इस सूरत हाल के बारे में कोई बयान क्यों नहीं दे रहा था? अमेरिका के बारे में खामोश क्यों था? इधर सलार वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात की तैयारी कर रहा था, जो वर्ल्ड बैंक के सदर की दरख्वास्त पर हो रही थी। सदर की मिन्नत भरी दरख्वास्तों पर वहां सदर के जाती इस्तेमाल में आने वाली कारों में से एक शोफर समेत लिमोजीन में बादशाहों की तरह प्रोटोकॉल के साथ वो वहां बुलाया जा रहा था। हेडक्वार्टर के बाहर प्रेस मौजूद थी, अपने मशीन गन जैसे कैमरों और माइक्स के साथ। बिजली की तरह फ्लैश लाइट्स के जमाकों के साथ इन्हें इतला किसने दी थी? ये सलार के लिए हैरत की बात नहीं थी। वो सर्कस का वो जानवर था जिसे बैंक और सीआईए अब नचा कर तमाशा लूटना चाहते थे और वो अपनी अगली हिकमत अमली तरतीब दे रहा था। इसे अगर नाचना ही था तो अपनी शर्तों पर। वो लिमोजीन से उतरकर अपने खुले कोट के बटन बंद करता, फ्लैश लाइट के धमाकों से कुछ फासले पर ड्राइववे के दोनों अतराफ में लगी हुई वार्निंग टेप के पार कैमरा मैनों और जर्नलिस्ट की भीड़ की तरफ एक नजर डाले बगैर अमले के अफराद की रहनुमाई में लंबे लंबे कदमों के साथ अंदर चला गया।
कुछ नए लोगों के अलावा बोर्ड रूम में वो सब लोग मौजूद थे जिससे वो कुछ दिन पहले भी मिला था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सलार का इस्तेकबाल वहाँ एक हीरो की तौर पर तालियां बजाते और खैर मकदमी नारों से हुआ, यूं जैसे वो कोई जंग जीत कर किसी बादशाह के दरबार में अपनी खिदमत का कोई इजाज लेना है। और इन सब के चेहरों पर मुस्कुराहटें और नरमी थी, आंखों में सताइश और होंठों पर दाद और तहसीन। सलार सिकंदर सिर्फ ये समझने से कासिर था कि वो करके क्या आया था, जिसके लिए ऐसा इस्तेकबाल किया गया था। मेज पर सदर की सीट के दाएं जाने पहले नशिस्त पर इसे बिठाया गया। इसकी आमद के 5 मिनट बाद वर्ल्ड बैंक का सदर बोर्ड रूम में आ गया। सलार सिकंदर भी बाकी सब की तरह एहतरामन खड़ा हो गया। वर्ल्ड बैंक को आप पर फख्र है। इसके साथ ही इस्तेकबाली कलमात की अदायगी के बाद सदर के मुंह से निकलने वाले पहले जुमले को सुनकर सलार का दिल कहकहा मार कर हंसने को चाहा। सदर के जुमले पर बोर्ड रूम ने तालियां बजाईं। सदर ने कांगो की सूरत हाल से गुफ्तगू का आगाज किया था और वहाँ वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन पर होने वाले हमलों में जख्मी और मारे जाने वालों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इसके बाद एबिका को शानदार खराज से अकीदत पेश किया था चंद जुमलों में, और फिर वो सलार सिकंदर की रिपोर्ट पर आ गया था जो बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पढ़ ली थी। न सिर्फ पढ़ ली थी बल्कि इस रिपोर्ट की तमाम सिफारिशात को मानते हुए एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। सलार सिकंदर ने हैरान हुआ था, ना मुतासिर। इसे अंदाजा था वर्ल्ड बैंक इससे कम में कांगो में दाखिल नहीं हो सकता। इन्हें अब वो प्रोजेक्ट खत्म करना ही था। वो खामोशी से सदर की गुफ्तगू सुनता रहा और गुफ्तगू के इख्तिताम पर सलार सिकंदर को दी जाने वाली नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया। बोर्ड रूम में बजती तालियों के साथ वो बेतासुर चेहरे के साथ अपने बेदिक्कत खिदमत के सिले में मिलने वाले अहम तरीन ओहदे की कदर कीमत का अंदाजा लगा रहा था। सलार को वहां बैठे ऐसा लग रहा था जिसे वो दुनिया के ताकतवर तरीन मालियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स में से नहीं, किसी घटिया थिएटर में चलने वाले मजाहिया ड्रामे के सामने बैठा है जिसमें हर एक्टर ओवर एक्टिंग कर रहा था। मैं सदर और बोर्ड में मौजूद तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और मुझे खुशी है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद बनाते हुए इसकी तमाम सिफारिशात को मान लिया गया है। मुझे उम्मीद है इस कदम उठाने से वर्ल्ड बैंक को एक बार फिर कांगो में अपनी साख बहाल करने में मदद मिलेगी। सलार ने बहुत मुख्तसर बात की थी, टू दी पॉइंट, प्रोफेशनल, जज्बातियत के बगैर, और उसे दो टोक अंदाज में जिसके लिए वो मशहूर था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि वर्ल्ड बैंक और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मुझे नायब सदर के लिए मुंतखब किया है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये ओहदा संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे यकीन है बैंक की टीम में इस ओहदे के लिए मुझसे ज़्यादा मौजूद लोग मौजूद हैं। सदर ने बेचैनी से अपनी नशिस्त पर पहलू बदला। इसे अपनी साख बचाना थी और ये काम इस वक्त सिर्फ सलार कर सकता था। मीटिंग इसके बाद खत्म हुई और इसके बाद सलार वर्ल्ड बैंक के सदर से अकेले में मिला था। वहाँ का माहौल कुछ और था और बातें भी। मुझे अपने कमरे से चोरी होने वाले तमाम चीजें चाहिए, लैपटॉप, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, मेरे बाकी डॉक्यूमेंट्स। सलार ने इस कमरे में मीटिंग के शुरू में ही एजेंडा सेट किया था। वो अपनी बातें मनवाने आया था। आज आपके कमरे से चोरी होने वाली चीजों से वर्ल्ड बैंक का क्या ताल्लुक? सदर ने अनजान बनने की कोशिश की। सलार ने इसकी बात काट दी। अगर मेरी चीजें नहीं मिल सकती तो फिर मुझे किसी भी इशू पर बात करने पर यहाँ नहीं बैठना। सदर ने लहजा नरम करते हुए जैसे से चमकारा। मैं हिदायत जारी करता हूँ कि फौरी तौर पर आपके नुकसान की तलाफी की जाए और आपके डॉक्यूमेंट का मुतबादिल। सलार ने इसी अखड़पन से इसकी बात काटी। मुझे अपनी चीजें चाहिए, ना तलाफी चाहिए ना मुतबादिल। मुझे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। खामोशी के एक लंबे वक्फे के बाद सदर ने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक और अमेरिका को कांगो में आपकी जरूरत है। एक शर्त इसने मनवाई, एक शर्त उन्होंने रख दी। मैं किसी की कठपुतली बनकर कांगो में वहां के इंसानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही करूंगा। इसने दो टोक कहा। आप कांगो में जाकर वो करें जो आप करना चाहते हैं, सदर ने कहा। मैं बंदे हाथों से कहीं कुछ नहीं कर सकता। नायब सदर के तौर पर आपको लामहदूद इख्तियार दिए जाएंगे। आप प्रोजेक्ट को रोकना चाहें, आपको हेडक्वार्टर की मंजूरी की जरूरत नहीं, आप खुद से ऐसा कर सकते हैं। चंद लम्हों तक सलार बोल ना सका। ये झांसा था तो पक्का था। जितने इख्तियारात आप मुझे देकर कांगो भेजना चाहते हैं, इतने आप किसी और को भी दें, वो सूरत हाल संभाल लेगा, सलार ने कहा। इशू इख्तियारात का नहीं है, नीयत का है। जो कुछ तुम अफ्रीका में करना चाहते हो वो कोई दूसरा नहीं करना चाहेगा। कुछ वक्त लो, सोचो, फिर फैसला करो। इसे कैद करके आजाद किया गया था। इसने वापसी पर मीडिया से बात नहीं की। उलझन थी कि और बड़ी थी। होटल वापस आते ही इसने कमरे में टीवी पर ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर जाते अपनी फुटेज देख ली, बल्कि न्यूज चैनल पर अपनी तैनाती की ब्रेकिंग न्यूज भी पढ़ ली।
वो इसलिए इनकार को मुश्किल बना रहे थे, जाल की डोरियां कसते जा रहे थे। इसका सेल फोन मिनटों में मुबारकबाद के पैगामात और कॉल से बजने लगा था। वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने के फैसले से अमामा खुश नहीं थी। इसका एतराज वही था और वही था, तुम बेशक वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से मुंसलिक हो रहे हो, लेकिन वो करता तो सूद का कारोबार ही है ना। छोटे बैंक अफराद का इस्तेमाल करता है और वर्ल्ड बैंक कौमों का। मुझे बताओ फर्क क्या हुआ? आसान कर्जा, सस्ता कर्जा, लॉन्ग टर्म कर्जा, शॉर्ट टर्म कर्जा, आसान शराइत कर्जा। कोई ऐसा कर्जा है वर्ल्ड बैंक के साथ जिस पर वो सूद ना लेता हो? इसने सलार के साथ बहस की थी। अगर हम इसी तरह एक एक चीज में मेख निकालते रहेंगे तो फिर इस माशरे और सिस्टम में तो कहीं भी काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये तो पूरा माशरा सूद पर खड़ा है। वो हमारे लिए अपने सिस्टम को नहीं बदलेंगे। इसने मामा को समझाने की कोशिश की। फिर तो हमें हलाल खाने की कोशिश भी तक करनी चाहिए। फिर तुम सुपर स्टोर में डब्बों पर इनके अज्जा क्यों चेक करते रहते हो? बस ये समझकर खा लेना ये सब कुछ कि ये हमारा नहीं इनका माशरा है, और अपने सुपर स्टोर में वो चीजें रखेंगे जो इन्हें पसंद हो। अमामा ने चला जवाब कर दिया था। वो बहस जारी रखने के बजाय वहां से उठ गया था, लेकिन अमामा की नाराजगी के बावजूद इसने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन कर लिया और अमामा को इसने अपने एग्रीमेंट और जॉब प्रोफाइल के कागजात जबरदस्ती पढ़ कर सुनाए। इसने सब कुछ सुनने के बाद इस पेपर्स को वापस लिफाफे में डालकर इसे देते हुए कहा, तुम सूद के पैसे से इंसानियत की खिदमत और बेहतरी के ख्वाब देख रहे हो और तुम्हें लगता है इसमें फलाह है? नहीं है। सूद का समझ इंसानों की जिंदगी बदल सकता है, मगर तबाही में, बेहतरी में नहीं। इसकी ये बरमला तनकीद सलार को खफा भी करती थी और कमजोर भी। इस दिन अमामा को फोन करते हुए एहसास था कि वो इससे क्या सुनने जा रहा था, लेकिन खिलाफ तवक्को इसने इस नए ओहदे के हवाले से कोई बात नहीं की। वो इसे जिब्रील अनाया हुमैन की बातें करती रही, यहाँ तक कि सलार का एहसास जुर्म हद से गुजर गया। वो जिसे चाहता था कि वो इसे मलामत करे, कोई तो मुबारकबाद देने के बजाय इसकी जमीन को कचूके लगाए। तुम्हें पता है वर्ल्ड बैंक ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट। अमामा ने इसको बात मुकम्मल नहीं करने दी। हाँ, यह खुरफी जवाब आया। तो सलार को तसल्ली नहीं हुई। तो क्या? अमामा ने मध्यम आवाज में पूछा। तो तुम कुछ नहीं कहोगी? इसने जानबूझकर ये नहीं कहा था कि तुम्हारा क्या ख्याल है। नहीं, बस एक और यह खुरफी जवाब। क्यों? वो बेकरार हुआ। तुम हर फैसला अपनी मर्जी से करते हो, फिर राय देने का फायदा? सलार एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर इसने मध्यम आवाज में कहा, मैंने अभी ऑफर कबूल नहीं की। कर लोगे, मैं जानती हूँ। जवाब ने इसे हंसाया। इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं थी। अमामा ने कहा, मैं जब भी तुम्हारी बात नहीं मानता नुकसान उठाता हूँ। इस बार वो हंस पड़ी। बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर, लेकिन मैं ये तो ना समझू ना कि तुम आइंदा हमेशा मेरी बात माना करोगे। इसने सलार पर चोट की थी। बिल्कुल, जवाब सराख से आया था। इस बार दोनों हंस पड़े थे। फिर सलार ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, यही वो बात थी जो कांगो से आते हुए तुमसे कहना चाहता था। अमामा को याद आ गया था उसे एक इतराफ करना था वापस आकर। ओह, मैंने सोचा पता नहीं क्या कहना चाहते हो। वो धीरे से हंसी और कहा, ऐसा क्या हुआ जो तुम ये बात कर रहे हो मुझसे, या तब कहना चाह रहे थे? सलार की समझ में इसका जवाब नहीं आया। तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते? अमामा ने इसकी खामोशी को एक पहेली की तरह बूझा। अभी नहीं, इसने जवाब दिया। यहाँ कब आओगे? अमामा ने बात बदल दी थी। अभी फ्लाइट बंद है कंशासा के लिए। लेकिन तुम तो परेशान नहीं हो ना? सलार ने पूछा। अब नहीं हूँ, और तुम भी परेशान मत होना। मुझे और हुमैन को इलाज की तमाम सहूलियात मिल रही हैं। अमामा ने इसके लहजे में नमूदार होती तशवीश को महसूस करते हुए कहा। सलार ने मुतमईन होकर कुछ देर जिब्रील और अनाया से बातचीत की, और इसके बाद कॉल खत्म करके वो इस लैपटॉप और कागजात की तरफ मुतवज्जा हुआ जो अभी कुछ देर पहले एक सरबा मेहर थैले में एक शख्स इसके कमरे में दे गया था। सब कुछ बिल्कुल महफूज हालत में था। कोई चीज डिलीट या गायब नहीं हुई थी। इसके बावजूद सलार को इनबॉक्स में जाते ही अंदाजा हो गया था कोई इससे पहले भी वहां था, क्योंकि इनबॉक्स में मौजूद 7 घंटे पहले तक आने वाली हर ईमेल खोले और पढ़े जाने की निशानदेही कर रही थी। इनबॉक्स में मौजूद ईमेल्स पर एक ताराना नजर डालते हुए एक ईमेल पर एक लम्हे के लिए इसका दिल रुका। वो पेट्रिस एबिका का आखिरी पैगाम था। तुम्हें पता है मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ? टाइम वार्नर सेंटर। और किस लिए? मैं भी कुछ देर पहले एंडरसन कॉपर के साथ था CNN स्टूडियोज में इसके शो में शिरकत, पहले इब्तिदाई बातचीत सेशन के लिए। मैन यू डिड इट। मुझे पता है इस वक्त तुम कहोगे, ओ माय गॉड। इस चीज ने इस वक्त सलार की आंखों को धुंधलाया था। वो मुस्कुराहटें थी। एबिका के जुमले के इख्तिताम पर, एंडरसन कॉपर से मिलने के बाद मैंने सबसे पहला मैसेज तुम्हें किया है।
کیونکہ میں یہاں تک کبھی نہیں پہنچتا اگر مجھے تمہاری صورت میں ورلڈ بینک کی بے ضمیری دنیا میں ضمیر کی جھلک نہ دکھائی دیتی۔ میں ان دیووں کے سامنے واقعی بونا تھا جو میرے ملک کو لوٹنا چاہتے تھے، لیکن پھر میں تم سے ملا اور مجھے لگا کہ مجھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے۔ واشنگٹن پہنچ جاؤں تو مجھے انفارم کرنا، ہم دونوں کو ملنا ہے۔ کافی دن ہو گئے، اسٹاربکس کافی پیے اور اس دفعہ بل میں پے کروں گا۔ ای میل کا اختتام ایک اور مسکراہٹ سے ہوا تھا، ایک آنکھ مارتی شرارتی سی مسکراہٹ سے۔ کانگو کی تاریخ کو ایبکا نے اپنے خون سے بدلا تھا۔ سارہ نے ای میل بند کر دیا۔ اس رات وہ مسلح پر بیٹھا گڑ گڑاتا رہا، اللہ سے آزمائش میں آسانی کی بھیک، سیدھے راستے کی بھیک جس سے وہ بھٹک گیا تھا، اور ان لوگوں میں شامل نہ کرنے کی بھیک جن پر اللہ کا عذاب آنا تھا۔ فجر کے وقت اسے ڈاکٹر سبز علی کا خیال آیا تھا، اور خیال نہیں آیا تھا، وہ جیسے دیوانہ وار ان کی طرف لپکا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں ٹکٹ حاصل کر کے اگلی رات پاکستان دوڑ چلا آیا تھا۔ ڈاکٹر سبز علی اس سے ہمیشہ کی طرح گمجوشی سے ملے اور کچھ حیرانی سے۔ وہ کئی سال بعد اچانک اس طرح ان کے پاس بھاگتا ہوا آیا تھا۔ انہوں نے سالار سے باری باری سب کی خیریت دریافت کی۔ امامہ ٹھیک ہے؟ جی۔ جبریل کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ عنایہ؟ وہ بھی۔ اور حمین؟ وہ بھی۔ وہ ایک ایک کے بارے میں بتاتا گیا اور ڈاکٹر سبز علی الحمدللہ کہتے رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اور تم؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس بار سالار بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ دم بخود اسے دیکھتے رہے۔ وہ پہلی بار ایسے ٹوٹ کر رویا تھا۔ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے کہا۔ مجھے مت بتانا۔ سالار نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو بتانے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ میں تمہارا گناہ جان کر کیا کروں گا؟ اب روک نہیں سکتا تمہیں۔ پچھتاوا دیکھ چکا ہوں۔ بہتر ہے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھو اسے۔ جو پردہ ہے اسے پڑا رہنے دو۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح تحمل سے انہیں سمجھایا تھا۔ میں بتاؤں گا نہیں تو میری گمراہی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو اندازہ نہیں میں کتنی تاریکی میں کھڑا ہوں۔ مجھے اس تاریکی سے خوف آنے لگا ہے۔ میں نے سود والا رزق چن کر اللہ کی حد توڑ دی ہے، اور مجھے ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ توبہ کر لو اور وہ رزق چھوڑ دو، انہوں نے بلا توقف بڑی سہولت سے کہا۔ توبہ آسان ہے مگر دلدل سے نکلنا آسان نہیں میرے لیے، انہوں نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ آسان تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ممکن بنا لیا جاتا ہے۔ میں 37 سال کا ہوں۔ اپنی عمر کے 10 سال میں نے دنیا کے بہترین مالیاتی اداروں میں کام کیا، سارا رزق سود سے کمایا۔ حمین بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے تمہارے لیے، سکندر عثمان نے فون پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، اسٹیبل ہے، سالار نے انہیں بتایا۔ تب سکندر کو اسکول کا کوئی چوکیدار یاد آیا تھا جو ان سے کچھ رقم ادھار لینے آیا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ سود پر کوئی رقم لی تھی اس کے ماں باپ نے اس کے بہنوں کی شادی کے لیے، اور وہ ابھی تک سود اتار رہا ہے۔ اب شاید کوئی اور مسئلہ آن پڑا ہے انہیں، سکندر عثمان سالار کو بتا رہے تھے، اور سالار کو لگا کسی نے اس کے گلے کی رسی میں ایک گرہ اور ڈال دی تھی۔ بعض دفعہ جب اللہ کوئی چیز منہ پر مار کر تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ سے وہی بات بار بار کرتی رہتی ہے۔ اس کے پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جانے کے بعد سکندر عثمان ہی گاؤں کے اسکول کو دیکھتے رہے تھے۔ ہفتے میں ایک بار وہاں جاتے اور اسکول کی انتظامیہ اور ملازمین کے معاملات دیکھتے۔ اب اس کی مدد کریں، اس کا قرضہ اتار دیں، سالار نے ان سے کہا۔ ہاں، تاکہ وہاں لائن لگ جائے قرض مانگنے والوں کی۔ ہمیں کیا پتا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ یہاں گاؤں دیہات میں 70% لوگ سود پر ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا اور کاروبار کا سائیکل ہے۔ تم یا میں اسے روک سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ سالار یہ بات سن کر دنگ رہ گیا تھا کہ وہ وبا کہاں کہاں تک ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اسی رات اپنے ہوٹل میں ورلڈ بینک کے کچھ ساتھیوں سے اس کی ملاقات تھی۔ انہیں کانگو کے لیے اپنا لائحہ عمل ڈسکس کرنا تھا۔ گپ شپ کے بعد وہ اس ہوٹل کے نائٹ کلب میں ان سب کے اشراف پر ایک اسپینی گلوکار کو سننے کے لیے گیا تھا، اور وہاں جیکی اس سے ٹکرائی تھی۔ ایسی جگہ پر اتنی پرکشش عورت کا اس پر یوں فدا ہونا اور اپنے ساتھیوں کا اس کے اعتراض سے ایک دم ایک ایک کر کے غائب ہونا سالار نظر انداز نہیں کر سکا۔ اسے ہنسی آئی تھی۔ مغرب کو ہر فرسٹریشن کا علاج الکوحل اور عورت کی شکل میں کیوں سمجھتا ہے؟ ان کی ہر ترغیب کی ابتدا اور انتہا عورت ہی کیوں ہوتی ہے؟ اور سی آئی اے کو آخر جلدی کس بات کی تھی؟ اس کو ٹریپ کرنا تھا تو اتنا گھسا پٹا منصوبہ تو نہیں بناتے۔ مستقبل میں اس کو استعمال کرنے کے لیے کچھ کمزوری چاہیے تھی تو کچھ انتظار تو کرتے۔
वो वहां से उठाया था और अब वो इस जहाज पर था। इस सफर में इसने ये तय किया था कि वो अपनी नौकरी से कमाए जाने वाले पैसों से अपने खानदान की कफालत नहीं करेगा। इसके लिए किसी भी जरिए से इनकी कफालत कोई मसला नहीं था। वो बहुत सी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर्स के लिए मदऊ होता था और इसके लिए इसे मुआवजा भी दिया जाता रहा था। इसे अब वर्ल्ड बैंक की नायब सदारत सिर्फ 2 चीजों के लिए दरकार थी। वो कर्ज सर से उतार देता जो एबिका ने इसके लिए छोड़ा था और वो कुछ मोहलत हासिल कर लेता। सूद से पाक पहले बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे की तश्कील के लिए मकसद बड़ा था, वसाइल भी इतने ही दरकार थे। दिल कहता था ये बेवकूफ़ी है और ज़मीर कहता था कि रास्ता है तो यही है। इसका हाथ पकड़े अब वो इसे किसी रास्ते पर ले जाने लगे थे। वो एक झील थी, हल्की नीली रंगत की शफाफ पानी की एक झील जिसके पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैरती हुई वो देख सकती थी और इसकी तह में बेशुमार रंगों के मोती और चींटियां। झील के चारों तरफ पर फूल थे। इसके कदमों को रोकने वाले से झील के किनारे पर मौजूद लकड़ी की वो खूबसूरत कश्ती थी। ये मेरी है। वो इससे हाथ छुड़ाकर बच्चों की तरह भागती हुई कश्ती की तरफ गई। वो इसके पीछे लपका। वो दोनों कश्ती में बैठ गए। हवा का एक तेज झोंका कश्ती को पानी में ले गया। दोनों बेख्तियार हंसे थे। पानी पर तैरता एक हंस इसकी तरफ आ गया था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो कश्ती के गिर्द अब दायरा बनाकर तैर रहे थे। वो पास से गुजरते हर हंस को छूती खिलखिला रही थी। अम्मा हड़बड़ा कर उठी थी नींद से। इसने अपनी कलाई पर किसी का लम्स महसूस किया था। तलार इसके करीब कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो ख्वाब अवर दवाओं के ज़ेर असर होते हुए भी एकदम अपना हाथ इसके हाथों से खींचती हुई कोहनियों के बल उठकर बैठने लगी थी। तलार ने इसे रोका। उठो मत, तुम वाकई आ गए हो। इसे अब भी जिसे यकीन नहीं आया था। वो धीरे से हंसा। तुम्हें बताया तो था कि आ जाऊंगा, ये तो नहीं बताया था कि कब आओगे। और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बस मैंने सोचा तुम्हारी नींद खराब होगी। वो मध्यम आवाज में बात कर रहा था। दूसरे बिस्तर पर जिब्रील और अनाया गहरी नींद सो रहे थे। तुम्हें क्या हुआ है? अमामा ने तलार के चेहरे को पहली बार गौर से देखा। इसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के और आंखें सुर्ख और यूं सूजी हुई थी जैसे कई रातों से नहीं सोया हो। कुछ नहीं, बस इतने दिन घर से दूर रहा, शायद इसलिए। फिर सलार ने इससे आंखें मिलाए बगैर कहा। अमामा ने इसकी बात काट दी। इसे एकदम अपना ख्वाब याद आ गया। सलार, तुम्हें पता है अभी मैं क्या ख्वाब देख रही थी? सलार ने चौंक कर इसे देखा। क्या? मैंने ख्वाब में एक घर देखा, झील किनारे, जहाँ तुम मुझे लेकर जा रहे थे एक कश्ती में बिठाकर। क्या? मॉर्टगेज। वो दम बखुद रह गया। जो घर इसने अमेरिका में इसके लिए था वो समंदर की एक झील नुमा टुकड़े के किनारे था। इसने अभी अमामा को बताया नहीं था। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। इसकी अगली सालगिरह पर जिस झील के किनारे वो घर था वो बेपनाह खूबसूरत थी। सफेद कमल के फूलों से भरी हुई नीले पानी की झील जिसमें हर तरफ राजहंस तैर रहे थे और पानी में रंग बिरंगी मछलियां। वो बोल नहीं पा रहा था। जिस झील किनारे जिसने वो घर खरीदा था वो भी कुछ ऐसी ही थी। एक लम्हे के लिए इसने सोचा शायद अमामा को इस घर का पता लग गया है। शायद इसने लैपटॉप में इस घर की तस्वीरें देख ली थी और अब जानबूझकर इसे छेड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा था तो इसने लैपटॉप कब देखा था? पिछले कई दिनों में तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इस लैपटॉप का इसके पास था। और घर कैसा था? वो कुरेदे बगैर न रह सका था। शीशे का। सलाह के रोंगटे खड़े होने लगे। वो घर भी शीशे का था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।